Hello guys, hello everyone. I'm Lohit Jindal, founder and director at Cortex Classes. I welcome you back in our next video of PRMO 2018 solutions. So guys, in this series we are solving previous year PRMO and IOQM solution questions, right? So far we have done PRMO 2017 and currently we are towards the fag end of 2018 as well. So in this video we are going to see the next question of PRMO 2018. Okay, so it's based on number theory. It's a bit lengthier. Okay, so let me show you the question guys without wasting any time. Let's see कैसे करना है इसको. Okay, so let me just get to the slide guys. All right, here it is guys. So this is question number 25. Let's see question कैसे solve करना है. Okay, let's see about it. All right guys, what does the question say? तो guys question ये है कि let t be the smallest positive integer. हमें एक ऐसा smallest positive integer t find करना है which when divided by 11, 13 and 15, 11, 13 और 15 से जब डिवाइड करें उस नंबर को, they should be leaving remainders in the sets 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 respectively. What is the sum of the numbers of the digits of t? तो हमें t एक ऐसा नंबर फाइंड करना है. तो गाइस लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको अगर 11 से डिवाइड करें तो 7, 8 या 9 में से रिमाइंडर आता हो, 13 से डिवाइड करें तो 1, 2 या 3 आता हो, और 15 से डिवाइड करें तो 4, 5 या 6 आता हो. एक ही कोई ऐसा नंबर ढूंढना है which should be satisfying this possibility or you can say property that ऐसा नंबर t है कि जिसको अगर मैं 11 से डिवाइड करूं उसका रिमाइंडर 7, 8 या 9 ही मिले, इन तीनों रिमाइंडर में से ही कोई वैल्यू मिले, राइट. और 13 से डिवाइड करें तो 1, 2 या 3 ही मिलना चाहिए, और 15 से डिवाइड करें तो 4, 5 या 6 मिलना चाहिए, राइट. एंड इन सच अ केस वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिजिट्स ऑफ t. ओके, तो गाइस इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे. इसमें हम क्या कर सकते हैं गाइस, वी शुड बी trying to apply Chinese remainder theorem, right? Why so? Because हमें उससे सबसे पहले ऐसे numbers ढूंढने चाहिए so that which give me remainder 1 only. इनसे अगर remainder 1 मिलने वाले मैंने numbers ढूंढ लिए, then I can modify them. Okay, let me show you the process. Okay, तो guys first of all सबसे पहले हम क्या करते हैं, LCM ढूंढ लेते हैं 11, 13, 15 का, because they are co-prime numbers. तीनों co-prime numbers हैं, common factors नहीं है. So let's see. So the LCM is, तो guys LCM निकाल के रख लेते हैं. So see what is the LCM of, will be needing it. So LCM of 11, 13, 15, right? तो वैसे तो guys तीनों को प्राइम है तो it is easy, आपको इनको मल्टीप्लाई ही करना है simply. So we'll get 2, 1, 4, 5. That is the multiplication of these three numbers, right? तो इसका यूज हम देखेंगे guys, I'll show you later on. Okay, so as I said Chinese remainder theorem यूज करेंगे, and if you guys don't know it please सर्च कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए प्लीज. उसके बिना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा because it is a very important theorem. Okay, जो नंबर थ्योरी में आती है. Okay, so what about the number now? So guys वो नंबर ऐसा ढूंढ लेते हैं हम n. I'll try to find such a number n that जब हम उसको 11, 13 या 15 से डिवाइड करें ना तो रिमाइंडर 1 आ जाए. Why so? Because then I'll be able to modify them, इंडिविजुअली मॉडिफाई कर पाऊंगा फॉर माई रिक्वायर्ड रिमाइंडर, राइट. सो गाइज एन को कैसे करेंगे, लेट मी अप्लाई चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम. तो 11, 13 और 15 के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे एलसीएम्स ढूंढने, राइट. तो इस तरह से देखते हैं. तो गाइज व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एन, कि अगर मुझे 11 से डिविजिबिलिटी देखनी हो, राइट, तो यहाँ पे 11 नहीं आना चाहिए, 13 इंटू 15 करेंगे. सो द नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 11 should give me remainder. 11 का रिमाइंडर मैं 11 के नीचे लिखूंगा. सो 11 इंटू 15, 13 के नीचे क्या आ जाएगा, 11 into 15. What is this meaning? I'll tell you guys. So this is 11 into 13. This is what a technique I use. तो guys देखो, हमें जब 11 के से डिवाइड करने पे रिमाइंडर की जो बात करनी है दैट इज इन द कॉलम 1. 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर की बात करेंगे तो कॉलम 2. बिकॉज देखो जब 13 हमने देखा तो मिडिल कॉलम क्यों देखना है, बाकी दोनों नंबर्स में 13 आ रहा है तो वो नंबर तो डिविजिबल ही हो गए ना 13 से. सो द रिमाइंडर विल बी गवर्न्ड बाय द मिडल वैल्यू, राइट. मिडल में जो 11 इंटू 15 से देखेंगे. सिमिलरली 15 से डिविजिबिलिटी से रिमाइंडर देखने के लिए मुझे फर्स्ट टू टर्म्स को कंसीडर नहीं करना है, उनमें तो 15 है ऑलरेडी. तो थर्ड वन आई विल सी, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन इट लाइक दिस. ओके, आई होप इट इज क्लियर. सो नाउ गाइस, ओके, तो मैंने रिमाइंडर्स इनके सेपरेट आउट कर लिए हैं. To understand better, you can say in that way. So I have separated out their remainders. ठीक है.
So guys, what is this number? Now 13 into 15. Okay, so that is value is 195. 11 into 15 is 165 and 13 into 11 is 143. ठीक है. So guys, that's not it. ये जो नंबर मिलेगा मुझे, ये तो अभी देखना पड़ेगा क्या रिमाइंडर देगा. द पॉइंट इज आई हैव टू मॉडिफाई इट एज आई टोल्ड यू कि है ना 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर मुझे 1 निकाल लेते हैं, फिर उसको फर्दर मॉडिफाई करेंगे. सो गाइज इसमें क्या करते हैं हम, लेट अस मल्टीप्लाई नंबर्स ए बी, सॉरी, लेट अस से x1 x2 एंड x3. ओके, नॉट एबीसी, बाद में यूज करेंगे इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ. ओके, अदरवाइज ऐसी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज गाइज, देखो when I am to suppose to find कि remainder 11 से remainder क्या आएगा, I only have to focus on x1, right? क्योंकि बाकी दोनों numbers जो हैं second और third column, they are already divisible by 11, so I don't need to consider those parts when I have to calculate the remainder by 11 when divided by 11, है ना? So I only have to consider the first column. Similarly for 13 I'll have to consider the second column, for 15 I'll have to consider the third column. So that's why now guys, अब मैं उनमें कुछ multiples multiply कर सकता हूँ. Overall these numbers are supposed to be added, right? These numbers will be getting added. n में क्या होगा, नंबर n की वैल्यू के लिए तो नंबर्स ऐड हो रहे होंगे. द कंडीशन हियर इज x1 x2 x3 हमने डाल दिया है, बट द कंडीशन साथ में क्या होगी, x1 x2 एंड x3 belongs to natural numbers, right? They are natural numbers. Okay, I hope it is clear. So now गाइज लेट अस अंडरस्टैंड कि हमें रिमाइंडर 1 चाहिए. अभी फिलहाल हम उसको ऐसे मॉडिफाई करेंगे कि हमें सिर्फ रिमाइंडर 1 आ जाए. x1 x2 x3 ऐसे रिमाइंडर नंबर्स फाइंड करेंगे सो दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 11 आई शुड गेट रिमाइंडर 1, व्हेन डिवाइडेड बाय 13 आई शुड गेट रिमाइंडर 1 एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 15 आई शुड बी गेटिंग रिमाइंडर 1. पहले वो निकालेंगे पहले, then we'll multiply them with some numbers so that we get our required remainder. Okay, let me show you. So guys, let's see when divided by 11 क्या आएगा. Okay, so let's write what does 195 give me when divided by 11. So mod 11 कर देते हैं. Okay, so you can see here 195 को guys divide करेंगे तो कितना आता है. So I have to say 195x1. I want that 195x1 should be congruent to 1 mod 11. This is my ask, right? कि 195x1 को अगर 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 हो जाए, तो x1 क्या होना चाहिए. सो लेट बी सिंप्लीफाइड फर्स्ट. तो गाइस 195 को अगर 11 से डिवाइड करें पहले, तो व्हाट विल बी द एलसीएम. 19 को डिवाइड करेंगे 11, 85 आएगा 77. ओके, so you can see 195 को डिवाइड करेंगे तो guys 8 will be the remainder. So that means I have to see 8x1 is congruent to 1 mod 11, right? So guys you can see x की क्या वैल्यू रखें कि 8x1 की वैल्यू, right? So that 8x1 का वैल्यू जो है आपको 1 रिमाइंडर दे. So you can see here that x1 has to be 7, sorry, not 8. देखो 8 के कौन से मल्टीपल्स हैं, what multiple of 8 will give you remainder of 1 when divided by 11. तो 88 into 5 करोगे, 7 करोगे गाइज, अगर आप 56 मिलेगा. 56 will give you remainder 1, right? So you can see it this way कि बाकी आप देख सकते हो 8 into 1 का रिमाइंडर तो 8 आएगा. 8 into 2 16, so the remainder is 5. Then 8 into 3 is 24, the remainder is 2. Then 8 into 4 is 32, the remainder is 9. 10, sorry, है ना, 10 आएगा 32 पे. Then 32 को आप 11 से डिवाइड करोगे, right? Then further if you divide, next multiple is 32 के बाद 40. 40 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 7 आ जाएगा. So you can see x1 की वैल्यू अगर आप 7 रखोगे it will be 56. तो 56 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे you'll get रिमाइंडर 1. So x1 की वैल्यू गाइस 7 आ रही है, right? You are getting x1 as 7. Now similarly guys आपको हम अब 13 के लिए भी करना है. So 165x2 should be congruent to 1 mod 13, right? This is our task. Next part. तो guys 13 से डिवाइड करेंगे 165 को, 13 हुआ 35. So that will give you 9x2, right? That will give you 9x2 if you divide it. So 9x2 is congruent to 1 mod 13. Now what should be multiplied with 9 so that I get remainder 1 when divided by 13. So देखो guys x2 को 2 रख सकते हैं. 18 पे कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा रिमाइंडर. 9 into 3 is 27. Yes, 27 will give me a remainder of 1 when divided by 13, right?
सो x2 की वैल्यू गाइज यहां से क्या आ जाएगी, विल गेट 3, राइट। फर्दर नाउ थर्ड केस सिमिलर गाइज, हमें क्या करना है, आई हैव टू डिवाइड 143x3, आई वांट रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि बाकी दोनों टर्म्स तो डिवाइड हो रही हैं 15 से, राइट। सो 15 से डिवाइड किया गाइज, द मल्टीपल इज 135, so you get 8x3 congruent to 1 mod 5 15, right. 143 gives you a remainder of 8 when divided by 15. तो guys 8 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, रिमाइंडर 1 आ जाए, वेरी इजी। सिमिलर स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 2, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दैट यू कैन गेट इज 2। सो गाइस x1 x2 x3 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 7 3 and 2। सो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। सी 195 into 7 plus, I'll write here, and plus 165 into 3, right, plus 143 into 2। तो गाइज अभी जो फॉर्म में नंबर्स हैं, इन दिस फॉर्मेट दे ओनली गिव यू रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव नंबर्स। 11 13 15 से तीनों रिमाइंडर्स क्या देंगे, 1 1 देंगे। एंड वी स्टिल नो कि जो फर्स्ट टर्म है 195 into 7 का टर्म है, जो अपना t है, अभी तो हम इसको t भी लिख सकते हैं ना, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट t हियर, राइट। तो गाइज जो 195 into 7 है, दैट टर्म into a, व्हाट आई डू इज आई से कि इसमें अगर बच्चों हम a मल्टीप्लाई कर दें, इसको b कर दें और इसको c कर दें। व्हाई डिड वी डू दिस, नाउ वी आर एबल टू गवर्न द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 11 बाय द फर्स्ट टर्म। देखो गाइस 11 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो सेकंड और थर्ड टर्म तो वैसे ही डिविजिबल है ना, आई गिव यू एन आइडिया। सेकंड और थर्ड टर्म ऑलरेडी डिविजिबल है 11 से, तो 11 से रिमाइंडर उनका तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। x2 x3 कुछ भी हो, जैसा भी हो, है ना, सेकंड और थर्ड टर्म दे विल नॉट पार्टिसिपेट फॉर द रिमाइंडर बाय व्हेन डिवाइडेड बाय 11 mod 11, है ना। फर्स्ट टर्म पार्टिसिपेट करेगा, तो 195 into 7 करने से मैंने क्या कर लिया, पहले ही उसका तो 1 कर लिया ना 195 into 7 का। सो इफ आई मल्टीप्लाई इट फर्दर बाय a, नाउ दैट a विल आई कैन चेंज टू गेट द रिक्वायर्ड रिमाइंडर जो मुझे चाहिए। सो यू अंडरस्टैंड कि अगर मैंने यहाँ पे a मल्टीप्लाई कर दिया है, दैट मीन्स माई a कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 7 8 and 9 as you was asked in the question, है ना। Similarly b can take values and the second term is for 13, है ना। 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या चाहिए हमें, 1 2 या 3। सो b can take values 1 2 और 3 and similarly guys c can take values, रिमाइंडर क्या आना चाहिए 15 से डिवाइड करने पे 4 5 या 6। See, so now I can govern in this way कि 11 13 और 15 से डिवाइड करने पे, right, so this is for, I'll mark here 11, this is for 13, जो गवर्न करेगा 13 का रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 15 के रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, राइट। सो नाउ द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज विल गवर्न कि मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, राइट। नाउ ABC मेरे को पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना, बट द प्रॉब्लम हियर इज आई हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट। उसके लिए हम थोड़ा सा इसको अब हमने एक लेवल तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। नाउ द पॉइंट दैट इज लेफ्ट इज मोर अबाउट द कैलकुलेशन पार्ट, कि हमें अब कैलकुलेट करना कैसे है, इजी कैसे कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे ऑफ कोर्स, है ना, बट हमें तो स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर की, सो आई हैव टू डू सम वर्क अबाउट इट। तो इसमें गाइस एक हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर अस। ओके, लेट अस डू दिस सब्स्टिट्यूशन गाइस। व्हाट इफ आई पुट a as, so that my variable becomes the same, right, a plus 8, मिडल वैल्यू जो है a को अगर मैं a plus 8 डाल दूंगा, so then my a term can take values -1 0 and 1, right। if I substitute now, मैंने यहाँ पे substitute कर दिया small a को with capital A, so that small a is a plus 8, right। so now it means middle term उठा लिया मैंने 8 by, तो अब जो a capital A का वैल्यू है then can either be -1 0 और 1, right। Similarly, I'll substitute b as b plus 2, so that this is same as, तो b भी क्या values attain कर सकता है, correspondingly b can also now attain values of -1 0 and 1, and similarly c को हम क्या substitute कर देंगे, c plus 5, right, the capital C term can take values again -1 0 and 1, so that अब ABC को मैंने -1 0 1 पे लेके आ गया हूं, और हम अब इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे एज a plus 8 b plus 2 and c plus 5,
Okay, let's see what our calculation becomes then. Okay, I'm sorry, just a second guys, पार्टीशन कर लेते थोड़ा सा. Okay, let me write here. So guys, क्या बन जाएगा हमारे पास, t की वैल्यू क्या आएगी? I'll solve it on the next slide. Okay, but एक बार यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख लेते हैं. So 195 into 7, देखो guys थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा. 195 into 7, the value of a we are putting is a plus 8. Okay, then plus 165 into 3, we are putting b plus 2, and then plus 143 into 2, we are putting c plus 5. So let me use some calculator guys, थोड़ा सा calculator use कर लेते हैं. I'll have to use, पेपर में आप कर सकते हो multiply, but we don't have that much time in the video itself, right? So 195 into 7. Okay, so let me do this guys. 195 into 7, that will give you guys 1365. Okay, this will give you 1365 times a plus 8 plus 165 into 3 is 495, I guess. Right? Calculation 495 आ जाएगा. Let me confirm. 165 into 3, yes, 495 into b plus 2 plus 143 into 2 is 286 into c plus 5. So guys, once you open it, see constant value कितना आएगा? So that is 1365 into 8, right? 495 into 2 and 286 into 5. So let me calculate it. Okay, you will not waste time on the calculation bit, right? You can do that obviously. 1365 into 8 plus 495 into 2 plus 286 into 5. Sorry, 495 into 2 plus 286 into 5. So guys, this number is 13,340. Right, 13,340 plus 1365A plus 495 times B, okay, and 286 times C. Okay, right? So guys, this is the expression for the T. First of all, हम यहाँ तक तो पहुंच गए हैं, right? Now we have to understand one thing guys, कि हमें इसको डिवाइड किससे करना है, right? We have to understand here one thing, कि हमें इसको डिवाइड किससे करना है, कि oh I'm sorry, let me get back to the slide. Okay, let me copy it on the next slide guys. ठीक है, okay, let me copy here. All right, so we'll start here fresh. Okay, so now we'll solve it here, so we'll have much more space. Okay, so the point is guys, अब हम यहाँ तक पहुंच गए कि हमारा t कैसा होना चाहिए. Now the number that I formed like this, now a, b and c can take values -1, 0 and 1. and अगर मैं पुट कर दूंगा, देखो गाइज यहाँ पे a, b और c की कोई भी एक वैल्यूज पुट कर दूंगा -1, 0 और 1 में से, I'll get a number which will be satisfying my criteria, corresponding criteria, right? So point is, तो गाइज इसको हम किससे डिवाइड कर रहे होंगे? तो हमने स्टार्टिंग में निकाला था ना मॉड, क्योंकि 11, 12, 13 और 15 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर मिलना है, तो 2145 से भी तो वही मिलेगा उनके रिमाइंडर से, उनके प्रोडक्ट से, सिंस दे आर को-प्राइम. The product that we found 2145 should be giving me the similar results, है ना? 2145 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो I need the remainders like 7, 8, 9, 1, 2, 3 और 4, 5, 6, वो A, B, C डिफाइन कर देंगे. So 2145 उनके मल्टीपल्स से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आना चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग, राइट? सो गाइज लेट अस मेक इट स्मॉल, क्योंकि टी हमें स्मॉल करना है. तो 13,340 में से यू कैन सब्ट्रैक्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 2,145. बेसिकली द पॉइंट इज गाइज, जो भी ये नंबर डिफरेंट एबीसी के लिए रिमाइंडर देगा 11, 13 और 15 के लिए, so if I remove the multiple of 11, 13, 15 out of it, it will still give me the same remainder because I'm doing mod 2145. so remainder तो अभी भी उतना ही रहेगा ना जो पहले था when divided separately by 11, 13 and 15. so let me remove 6 multiples of 2145 out of 13,340, वो सिंपली कर सकते हैं. so that will give me guys 470. we are left with 470 similarly. okay, that will give me the same remainder.
एंड गाइस 1365 इज ऑल्सो बिग नंबर, तो 2145 में से इसको भी बेसिकली आई एम सब्ट्रैक्टिंग 2145A, तो उसको भी क्या कर देंगे, लेट मी कैलकुलेट, सी क्या आता है, 1365 minus 2145. So that will give us guys 780A. So that will give me minus 780A plus 495B, एंड सिंस दे वाले नंबर तो छोटे ही हैं, उसको ऐसा ही रख लेते हैं 286C. सो दैट इज मॉड 2145, राइट. तो गाइज यहां तक हमने समझ लिया है कि हम यहाँ पे वैल्यूज क्या पुट कर सकते हैं. 2145 के मल्टीपल्स अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द रिमाइंडर्स, सेपरेट रिमाइंडर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 11, 13 एंड 15. तो हमने ये वाला जो एक्सप्रेशन डिनोट कर लिया है गाइज. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, नाउ लेट मी रिमाइंड यू गाइज, ए बी सी की वैल्यूज कहाँ किस सेट में थी, वी रोट दैट -1, 0 या 1 में से ही पुट कर सकते हैं एबीसी की वैल्यूज. नाउ डू कीप इट इन माइंड, हमने इसको मिनिमाइज करना है. आई हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, राइट. तो गाइज जो भी है, तो ए की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं डालूंगा ना, देन द नंबर विल एनीवेज इंक्रीज, बढ़ जाएगा नंबर. तो since I want to keep it a minimum, so respective values of ABC that I should think about is A की वैल्यू 0 या 1 ही डालने की कोशिश करनी चाहिए हमें, क्योंकि नेगेटिव पुट करेंगे तो गाइस नंबर विल इंक्रीज ओनली, क्योंकि -780A है, A को अगर -1 डालेंगे और बड़ा हो जाएगा नंबर, है ना. वी हैव टू फोकस ऑन कीपिंग इट स्मॉलर. एंड B और C को, एंड B और C क्या हो सकते हैं गाइस, B, अब B को भी पॉजिटिव साइन है उसके आगे, तो वी हैव टू कीप B मिनिमम. So that will be negative B नहीं डालें, पॉजिटिव नहीं डालेंगे, 1 नहीं डालना चाहिए ना. तो I'll put -1 और 0 only. I don't want to increase the value. Similarly C की वैल्यू क्या डालेंगे, सिमिलर वे -1 एंड 0. Will not put 1 each because फिर तो नंबर बढ़ जाएगा, राइट. ठीक है ना. तो ये वाले रिमाइंडर्स पे हमें फोकस करना है फॉर द स्मॉलर वैल्यूज. आपको टी का स्मॉल वैल्यू चाहिए क्योंकि. सो लेट अस टेक डिफरेंट केसेस गाइस, सिंस एवरी वैल्यू ए बी सी तीनों दो वैल्यूज ले सकते हैं गाइस, we'll have to make 8 cases, है ना. We need to make 8 cases for this. So first case is when I'm selecting 0. Okay, let us see 0, -1, -1. So इसमें guys t की वैल्यू देखो क्या आएगी. So देखो guys 470, 780 ये तो 0 हो गया, -495 -286. So आप देख सकते हो guys this is negative, right? This is negative, so we'll not consider it. राइट. सिमिलरली सेकेंड केस, अभी इसको 0 ही रखते हैं, -1 एंड 0, राइट. सो यू सी गाइज ओनली वैल्यू दैट विल बी चेंजिंग इज 470 -495. इट इज स्टिल नेगेटिव, नेगेटिव नंबर तो नहीं चाहिए, तो ये केस भी खत्म. थर्ड केस 0, नाउ विल कीप दिस 0 एंड -1, राइट. सो टी इज 470, राइट. अभी तक गाइज हमने ए को 0 रखा हुआ है, बी और सी को चेंज कर रहे हैं, तो देयर विल बी 4 केसेस, राइट. सो 470, लास्ट वाला C -1 है, so -286. So that is guys 170, 184, right? I think so. Yes. So guys, this gives you 184, right? This could be one of the values. This could be a possibility, right? Okay. Fourth case. This is still 0, 0, and this is 0. तीनों ही 0 हो गए guys. So T is of course 470. So this could be a possibility. Although हमने उससे छोटा 184 ढूंढ लिया है ना? Already we have got the smallest till now is 184. Till now that is the leading number, मतलब या winning number आप कह सकते हो. Now same cases guys, A को 1 put कर देते हैं, then -1 -1. So A को अगर 1 put कर दिया guys, so see what will be the value of T. आप तो further छोटा कर रहे हो ना guys. Simply think about this कि जो first case था, है ना, उसमें further A को 0 1 डाल दिया, तो अब तो -780 सब में हो जाएगा ना. We don't need to calculate all the cases again guys. देखो why so, the fifth case is very much similar to case 1, है ना. It is basically case 1 -780, क्योंकि आप A को 1 डालने वाले हो तो -780 एक्स्ट्रा हो गया, तो still it is negative. We don't need to calculate, already negative था वो, है ना. Similarly, what is the change when you have to take the sixth case? It is very much similar to second case when we have just changed the value of A. B और C को same रखा हुआ है, -1 0. You see again what will happen? It will be second case
में जो वैल्यू आई होगी उसमें से -780 हो जाएगा, तो पहले से ही नेगेटिव था वो, तो केस 2 तो वो भी नेगेटिव हो गया। सो यू गेट द आइडिया। तो कैलकुलेशन आप पेपर में थोड़ा इजी कर सकते हो एज आई टोल्ड यू कॉन्सेप्ट। सो थर्ड केस में, सेवंथ केस में क्या होगा, इट विल बी अगेन थर्ड केस वैल्यू -780, सो दैट विल बी अगेन नेगेटिव बिकॉज थर्ड केस में गाइस 184 आ रहा है, उसमें से -780 करेंगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव में चले जाओगे आप, ठीक है। सो यू गेट द आइडिया। सो एवरी केस, फर्स्ट 4 केसेस एंड द नेक्स्ट 4 केसेस यू कैन जस्ट से कि हर वैल्यू में से आपने -780 कर देना है। सो 1 0 एंड 0। सो यू सी गाइस अगेन फोर्थ केस -780 हो रहा है, सो दैट इज अगेन नेगेटिव बिकॉज फोर्थ केस में भी 470 आ रहा था, -780 विल गिव यू नेगेटिव। सो ऑल द केसेस आर नॉट इंक्लूडेड, these all cases are not possible, this is not possible, this is not possible. So two possibilities were there guys. So finally winning number आपका कौन सा है, जो smallest number ऐसा है, that is 184. and still the question is not over guys. अभी question में finally ये लिखना है, what is the sum of the number squares of the digits of t, sum of the squares of the digits of t. तो guys sum of squares क्या आएगा देखो, so sum of the squares is 184 के लिए, okay I'll write the number here. So the number is 184, right? So guys 1 square plus 8 square plus 4 square, तो 8 square is 64 plus 1680 plus 181. So बच्चों final answer to this long question is 81, right? So a good question, very good question of numbers theory. Guys, if you find it a bit difficult, yes, paper में 5 marker question I would say, if you are, see guys, you have to need to understand how to strategize as well. क्वेश्चन आपको अगर नहीं आ रहा है तो बात कर रहा हूं, तो ऐसे क्वेश्चन को करने की बजाय यू कैन try to target the easier ones first, because not all 5 markers are this difficult as well, है ना? This is like the difficult one on the difficult side of 5 marker question. Although guys आप इसमें थोड़ी सी अगर घिसने की बात कर सकते हो, if you are able to, you know, if you are willing to do some extra leg work, तो ऐसे क्वेश्चन को ना वैल्यूज पुट कर भी सॉल्व कर सकते हो. इट विल नॉट टेक दिस लॉन्ग टाइम, एटलीस्ट इतना थिंकिंग पावर भी नहीं चाहिए होगा आपको. ऑल यू हैव टू डू इज पुट इन द नंबर्स. ओके, लेट मी गिव यू एन आइडिया व्हाट आई मीन. तो ये क्वेश्चन वैसे सॉल्व कर लिया हमने गाइस, बट आई विल गिव यू एन यू नो लूप होल काइंड ऑफ, कि नॉट अ लूप होल रादर, कि थोड़ा लेग वर्क करके इससे भी कम टाइम में ही आंसर निकाल लोगे आप. कैसे गाइस? सो पिक अप दिस नंबर, लार्जेस्ट नंबर पिक करते हैं. देखो गाइस 15 से डिवाइड करेंगे अगर हम, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 4 5 या 6. सो व्हाट आर दोस नंबर्स? फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज इज 15k plus 1, 15 plus 4, 15 plus 5, 15 plus 6, तो दैट विल बी 19 20 21. चेक फॉर द रिमाइंडर बाय 11 ना. अब आपको अब क्या करोगे आप, ये कंडीशन चेक कर लो, क्या 11 को से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7 8 9 आ रहा है, नहीं आ रहा है, या आ भी रहा है, या फिर 13 से चेक कर लो. फिर when you divide by 13, are you getting remainders 1 2 and 3? You check for 13, remainder by 13. okay, I'll show you. 11 और 13 के लिए चेक कर रहे हैं. 13 के लिए रिमाइंडर क्या आएगा, 19 20 21 के लिए 6 7 8 आ रहा है. सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट द सेट, वो रिमाइंडर ही नहीं आ रहा 1 2 3. तो ठीक है, नेक्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज विल बी 34. यू जस्ट कीप ऑन एडिंग 15 टू इट, 34 35 36, राइट. अगेन 13 से डिवाइड करोगे तो गाइस क्या रिमाइंडर आ रहा है 34 का, 8 9 10. नहीं पॉसिबल, राइट. दिस इज गिविंग यू रिमाइंडर्स 8 9 10. 11 का देख सकते हो 1 2 3. सो this set is not possible. So you keep on going like this. So since the answer we know is 184, all you need to do is this work. 10 बार करना है आगे, कुछ नहीं. और simply just keep on checking with remainders with 11 and 13, है ना. वो तो आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ. You can do these things, these steps in your mind as well. तो आपको इतना टाइम नहीं लगाने की जरूरत है. पेपर में ये आप जुगाड़ मेथड बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन होने को तो करने को तो कर सकते हो, बिकॉज यू हैव टाइम ऑन योर हैंड्स इन एग्जाम लाइक मैथ्स ओलंपियाड, राइट. यू हैव सम टाइम, तो 5 मार्क्स भी तो मिल रहे हैं. So you can do that leg work for 5 marks, right? So that's it from my end guys. I hope आपको ये question समझ में आ गया. Final answer is 81. And guys, if you're finding these videos beneficial, as I said, please recommend it to your friends as well. Okay. So keep practicing guys. We'll see you in the next video. Till then, keep practicing and all the best guys. Bye bye. Take care.